स्टार्ट करें। सो डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम, और उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था एको वाला सिचुएशन। ठीक है चल, तो क्या कर सकते हैं? शुड वी वेट यूर सेइंग? तो उसमें वेंट वाला वेरिएशन किया था मैंने लास्ट।
हाँ नहीं वेट नहीं कर रहे हैं, विल कंटिन्यू, लोग बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग पे। सो उसमें वेरिएशन हमने देखा था, आई एक्सप्लेन टू यू द एको सिचुएशन, हाउ टू हैंडल द एको सिचुएशन। और फिर वेरिएशन दूसरा था जिसमें विंड या ब्रीज टाइप चल रहा है और डॉपलर इफेक्ट हो रहा है, so that's the other variation. And the third variation in Doppler is 2D Doppler, which is actually quite simple. वैसे हमारे सिलेबस में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग 1D Doppler ही है, but this is not विंड वाला क्वेश्चन करना है, कर लेते हैं। लेट्स से कि ये एक सोर्स ऑफ साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी जो है 220 हर्ट्ज है, और ये चल रहा है टू द राइट एट VS equals to 33 मीटर पर सेकेंड, और इधर एक डिटेक्टर है जो उधर ही जा रहा है एट VD equals to 11 मीटर पर सेकेंड, और विंड चल रही है इस तरीके से जिसका स्पीड V विंड है 11 मीटर पर सेकेंड, इसको ले लो 22, ठीक है। तो फाइंड, हाँ, फाइंड द फ्रीक्वेंसी परसीव्ड बाय द डिटेक्टर, इसको कर लो जस्ट एज अ प्रैक्टिस फॉर द विंड वाला डॉप्लर केस। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ठीक है करो इसको फिर। Sir, हम्म, sir, I just joined right now. Can you tell what have you told? nothing so far. I was going to explain this, but I'm first giving you a problem. The wind wala scenario. There is a source of sound which is producing a sound of frequency 220 hertz, moving at 33 to the right. There is a detector moving to the right at 22, and there is wind blowing in the direction opposite to the direction of motion of these two at 11. And स्पीड ऑफ साउंड कितना है ना? speed of sound ले लो 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, दो आंसर है, लेट मी I'll solve them then you can verify, पार्थ एंड मिराज।
I'm not sure which is the correct answer. So can you check the chat? हाँ मैं आंसर्स मैं भी सॉल्व कर देता हूँ तो तुम लोग वेरीफाई कर लेना. So let me solve them. So if I'm doing it in the wind frame, then I'm going to say that the source is actually going this way at 44 and the detector is going this way at 33 and the sound is still going at 330 because I'm in the wind frame. Then I have to apply standard Doppler, which is the frequency that is received is frequency naught and then C plus, C minus, and V detector is going to be 33 with a negative sign and V source is going to be 44 with a positive sign, right? And that leads to 297 over 30 and 14, 286, right? Times 220 with 11, that's 20, and 11, that's 26, and that's 13, and that's 10,
So I'm getting 2970 by 13, which should be around 26, 3, 2, 26, and 7, around 7, 8, maybe 228 around. Yes. ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये करेक्ट आंसर है। प्रणव, हाँ आ जाते हैं कभी एडवांस में, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ चैप्टर्स में। आई मीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है साउंड में, ऐसा नहीं है, बट from something like Doppler effect and all, usually you get straightforward formula based questions. ठीक है। ओके, एंड देन सो 2D डॉपलर में क्या होता है कि मान लो ऐसा सिचुएशन है कि सोर्स जो है इस तरफ जा रहा है V सोर्स से, let's say just to set up the situation in 2 dimensions, the source is moving on the x-axis towards the origin, the detector is also let's say moving towards the origin at V detector, right? अब इस केस में मुझे फाइंड करना है कि कितना फ्रीक्वेंसी और F0 फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम को करने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, यू जस्ट हैव टू consider the situation on the line joining the two. So then if you know the angle right now, theta, let's say, and this is 90, then this is 90 minus theta. Then basically I'm just going to write down what you have to do, which is that solve as 1D Doppler along line joining source and detector. तो बेसिकली V सोर्स तुम ले लोगे Vs cos थीटा और V डिटेक्टर तुम ले लोगे V डिटेक्टर sin थीटा। बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे फॉर्मूला में डालते हो वैसे ही डालोगे, राइट? सो ऑल यू हैव टू डू इन 2D Doppler is to take the components of the velocities along the line joining the two and then basically solve it like a 1D Doppler problem. इसमें एक वेरिएशन और भी पॉसिबल है, which is, I mean, I have never seen a question asked like that, but it could come potentially. Is that with a situation like this, what happens is, and that can also happen in one-dimensional Doppler also. Usually it's not the case. So I'm saying 99% of the times, this additional complexity is not there. So you should not take it as a default, which is that it's both for 1D and 2D. Is that because sound has a finite speed of propagation, if the source or the detector are accelerated, right, then their velocities are also changing. But if, so for example, in this case, this is also an accelerated motion. It is not accelerated for themselves individually, but along the line joining the two, since the angle will continuously change, then the components might change. So now if this is a large distance compared to the speed of sound, कि भाई ये जो ये distance है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो 40 किलोमीटर है, something like that, or whatever, some large distance. Then of course the trouble is that कि detector ने इस समय जो sound सुना है वो नहीं है जो source ने इस समय emit किया है, right? So then you have to sort of take the situation back in time कि detector जब जो sound ये अभी सुन रहा है वो source ने तब emit किया होगा जब वो यहाँ कहीं था, ठीक है, और ये यहाँ पे आके उसको सुन रहा है, तो वो वाला लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो सोर्स का एमिटिंग पोजीशन से कनेक्ट करता है डिटेक्टर का डिटेक्टिंग पोजीशन को, लाइक दे आर बोथ मूविंग एंड थिंग्स आर चेंजिंग विद टाइम. So the source emits one wave, and while that wave is propagating in space, the two are also moving, and so by the time the detector receives that wave, the detector is not where it was when the source emitted that wave. So that you have to do a bit more geometry then, कि say कि let's say the source was x distance before, where when it emitted that sound which the detector is receiving now, तो फिर वो एक दूसरा dimensions दिए रहेंगे, तो वो x और लेके फिर ये वाला distance उसने travel किया होगा sound, ठीक है? तो पहले तो तुम वो कैलकुलेशन करोगे कि कितना पीछे था कि वो साउंड इसको अभी सुन रहा है, फिर जब वो कैलकुलेशन से x मिल जाएगा, then you will apply again the same logic but resolve the velocities along that line. Did you all understand what I'm saying? Yes. But this is hardly ever the case. I'm saying it for the sake of completeness, but it's never the case. Like you should not, this is not the thing you should think of first. Any given problem of Doppler,
you should simply assume that whatever is the geometry is the geometry. If the data is such, or they make some, because no problem of this sort has ever come in IIT, so I can't even tell you कि कैसा वो indirectly, but they can always give that kind of a problem, right? Passage type problem की they might hint at it कि गौरव डिटेक्टर का तो करंट पोजीशन लेंगे ना, क्योंकि डिटेक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करंट पोजीशन ही लेना होगा, अभी उसको मिल रहा है, तो उसको जिस एंगल पे मिल रही है वो रेलिवेंट है, लेकिन सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमिटिंग पोजीशन लेना होगा, जिस एंगल पे छोड़ा वो रेलिवेंट होगा। तो एक्चुअली सोर्स का एमिटिंग पोजीशन को डिटेक्टर का डिटेक्टिंग पोजीशन से कनेक्ट करना है, राइट? तो मे बी दे माइट मेक लाइक अ शॉर्ट पैसेज टाइप प्रॉब्लम एंड से स्टफ लाइक कि sound has a finite propagation speed, so there is some delay, and then give you a Doppler type problem. I'm just hypothetically making up this problem because I don't know how they might ask. But if there is something like that, then you know how to handle it. Otherwise, if nothing is said, and in most cases like 99.99%, you should simply go with कि बस ये situation है और ये angle है, and just resolve the velocities and do one dimensional Doppler. ठीक है? So mostly it's not something you have to take into account, but just keep it at the back of your head. कैसा पॉसिबल है? ठीक है, तो ये तो हो गया डॉपलर का स्टोरी। सर हाँ, वो नहीं समझा कि अगर साउंड का स्पीड फाइनाइट होगा तो कैसे करेंगे? साउंड का स्पीड फाइनाइट है तो बेसिकली सोर्स ये है, डिटेक्टर यहाँ पर है और तुम इस पे रिजॉल्व कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली साउंड का स्पीड फाइनाइट है तो सोर्स यहाँ कहीं रहा होगा, तब उसने वो वेव एमिट किया होगा जो डिटेक्टर अभी डिटेक्ट कर रहा है। उतना देर में वो मान लो यहाँ पहुंच गया एक्स चल के। मगर साउंड को सोर्स को एकदम स्टेशनरी मान के लेना पड़ेगा ना वो केस में, नहीं, मूविंग जब भी वो सोर्स ही था लोगे, तभी ये इधर पहुंचा ऐसा। मूविंग सोर्स लोगे तब डिटेक्टर भी पीछे रहा होगा, वेव्स तो सभी तरफ जा रहे हैं क्योंकि वेव्स तो सर्कल में जा रहे हैं। यस सर। तो तुम सोर्स का जो एमिटिंग पोजीशन है उसको कनेक्ट करोगे डिटेक्टर का डिटेक्टिंग पोजीशन से। ये सोर्स का फाइनल पोजीशन है, डिटेक्टर का फाइनल पोजीशन है। डिटेक्टर माइट हैव बीन हियर, but the relevant position is the source original position and detector now position. Right. And then once you find that line, then you find that angle. So instead of taking this angle, you take the theta prime angle to resolve the velocities and then do this. And the way you find how much back the source was, or how behind its current position it used to be, is basically by equating time. कि सोर्स अगर vs से जा रहा है तो x चलने में उसको vs से जितना टाइम लगा होगा उतना ही साउंड को whatever this is l चलने में लगा होगा c से, राइट? तो इससे तुम वो निकाल सकते हो कि सोर्स कितना पीछे था जब उसने वो वेव एमिट किया जो डिटेक्टर को अभी मिल रहा है। ये डायमेंशंस तो प्रिज्यूमेबली दिए ही होंगे, इनके बिना तो नहीं सॉल्व होगा। तो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा सोर्स एक्चुअली सर एल मतलब ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए ना, वो एल ज्यादा चेंज हो गया तो साउंड का मतलब टाइम एल चेंज नहीं होना चाहिए मतलब क्या है? मतलब एल ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब एस एस डी और एस डैश डी डैश इक्वल होना चाहिए। नहीं, क्या कह रहे हो तुम? आर यू सेइंग कि इट विल नॉट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज़ साउंड इज वेरी फास्ट? सर नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर एस और एस डैश डी डैश मतलब के बीच में ज्यादा डिफरेंस होगा तो साउंड का टाइम कैसे निकालेंगे? He's saying that distances are too long, तो फिर कैसे निकालेंगे? नहीं, which distances? L. सर वो जो perpendicular distances है ना, If these are too long, AB. हाँ सर। नहीं सर मैं ये बोल रहा था कि अगर एस डी और एस डैश डी डैश है तो वो दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो फिर साउंड का टाइम कैसे निकालेंगे? नहीं, डिफरेंस कितना भी हो सकता है, हाउ डज इट मैटर? लेट्स से कि ऑल आई एम सेइंग इज एस डैश एल बाई सी नहीं कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि एल चेंज हो गया। नहीं, वो तो वही एल है ना, एल वही है, वो होने तो चेंज हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब इसको वो वेव मिल रहा है तब सोर्स क्या कर रहा है उससे इसको क्या फर्क पड़ता है? ये तो वेव डिटेक्ट कर रहा है ना।
सोर्स ने वेव छोड़ दिया मीडियम में, ओके समझा right? You are thinking the wave is constantly, it's not like that. You're attaching the wave too strongly with the source. वो छोड़ देता है वेव, वो तो constantly emit कर रहा है ना, तो जो उसने वेव तब छोड़े थे वो तो इंडिपेंडेंट है उससे, अब वेव्स का तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वेव चल पड़ा है। अब सोर्स बीच में रुक जाए, वापस चला जाए, कुछ भी करे, भले ही सीधा लाइन पे नहीं भी जाता रहे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इस वेव के प्रोपगेशन पे। ये तो एल डिस्टेंस चलेगा जहां से छोड़ा गया था और जहां डिटेक्ट होगा उसके बीच में एल सेपरेशन है जो फिक्स क्वांटिटी है। हाँ सर समझा। ठीक है, अच्छा तो ये तो डॉपलर हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, साउंड का। अच्छा, बिफोर दैट लेट मी से वन मोर थिंग, यू माइट सी अ प्रॉब्लम ऑफ दिस सॉर्ट, दिस गोज बैक टू स्टैंडिंग वेव्स। लेकिन हमने साउंड के कॉन्टेक्स्ट में स्टैंडिंग वेव जो देखा है वो पाइप्स में देखा है, राइट? पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, पाइप क्लोज्ड। यू माइट आल्सो गेट स्टैंडिंग वेव्स इन रॉड्स, क्योंकि रॉड में भी हमने स्पीड ऑफ साउंड का लॉजिक देखा था, फॉर्मूला देखा था। इधर में फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। So this is also a system that can be set into standing waves, but not transverse waves. I'm talking longitudinal standing waves, right? Just like in a pipe. तो ये वही प्रॉब्लम है जो वेव ऑन अ स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव सेटअप करने वाला प्रॉब्लम है, ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव सेटअप करने वाला प्रॉब्लम है। बस सी की जगह तुम्हें ये लेना है। और दूसरा, इसमें बाउंड्री कंडीशंस ऐसे डिसाइड होती हैं कि दे विल से कि यहाँ पे इसको क्लैंप किया हुआ है, अब कहीं तो क्लैंप करना ही पड़ेगा इसको, कहीं फिक्स करना है। तो अगर मतलब आज सब वेव्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे ऐसा ना? वेव्स वहाँ पे सब एब्जॉर्ब हो जाएगी वैसा काइंड ऑफ? एब्जॉर्ब नहीं होंगी ये, बेसिकली अगर जहाँ पे भी उसको क्लैंप किया हुआ है तो दैट क्लैंप विल बिकम अ डिस्प्लेसमेंट नोड। ओके, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम अ डिस्प्लेसमेंट नोड, क्योंकि अगर तुमने फिजिकली वहां पे क्लैंप कर दिया है तो उधर का जो रॉड का मटेरियल है वो लॉन्जिट्यूडनली वाइब्रेट नहीं कर सकता है। तो देन योर जॉब इज टू फिट अ काइंड ऑफ अ स्टैंडिंग वेव व्हिच एवर, आई मीन यू हैव टू चेक कि जो ओपन एंड्स हैं उसके वो तो हमेशा एंटी नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बनेंगे, क्योंकि रॉड है ये इजीली वाइब्रेट कर सकता है, फ्री एंड है उसका वो। तो नोड जो है, जो उसका फ्री, जो उसका एंड है रॉड का, वो तो एंटी नोड ही बनेगा। और जहां क्लैंप कर दिया है, कहीं पर भी बोल सकते हैं वो मिड पॉइंट पे क्लैंप कर दिया है, दोनों एंड्स पे क्लैंप कर दिया है, सो द बाउंड्री कंडीशंस कैन चेंज प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। द पॉइंट इज, इफ जैसे यहाँ पे इसको क्लैंप कर दिया है तो तुम्हें अब इस पे ऐसा वेव बैठाना है, आई मीन द काइंड ऑफ वेव दैट कैन बी सेट अप इज दैट काइंड ऑफ अ वेवलेंथ फॉर व्हिच दीस टू आर एंटी नोड्स एंड दिस इज अ नोड। अब डिपेंड्स कि भाई वो कैसा दिखता होगा, बट व्हाटएवर इट माइट लुक लाइक, लेट मी से वन of them could look like this. Of course मैं ट्रांसवर्स वेव नहीं बना रहा हूँ, प्लीज डोंट थिंक दैट, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। रॉड ऐसा नहीं वाइब्रेट कर रहा है, ये केवल डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट है। रॉड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, बट दिस इज अ वेवलेंथ दैट यू कुड पोटेंशियली सेट अप। दिस इज नाउ फोर्स्ड टू बी अ नोड, these two will always be anti nodes and now you have an additional node here, of course by symmetry। या और भी कोई सा हार्मोनिक सेटअप हो सकता है। all I'm saying is that the ends of the rod will always be displacement antinodes, and the clamp will always be displacement node. That's all. ठीक है, तो you could get a standing wave problem for rods also. बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम स्टोरी है, वही फंडामेंटल मोड जो भी हार्मोनिक है, फ्रीक्वेंसी, ये वो। अभी तुम्हारा ऐसा रॉड है, इसमें दोनों तरफ से ओपन एंड है, तो बेसिकली इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी वो C/2L आ जाएगी, और जो हार्मोनिक्स आ जाएंगे इसमें, या अदर जो ओवरटोन्स आ जाएंगे इसमें, वो आ जाएंगे C/2L। C/2L छोड़ दो, 2C/2L, 3C/2L, 4C/2L। I am just writing this for this case. If they put a clamp here only on one end and do not put a clamp here, then this will be like a string fixed at one end and free at the other end. तब वो odd harmonic missing वाला situation हो जाएगा। टॉपिक नेम क्या लिखें? प्रेरित स्टैंडिंग वेव्स इन रॉड लिख लो, ठीक है। All right, so that's that, and therefore we come to the last part of the story, which is called beats। ठीक है, ये वो वाला बीट्स नहीं है, म्यूजिक वाला जो बीट्स होता है, ये जो है बेसिकली, इफ यू रिमेंबर मैंने एक फ्लो चार्ट ऑफ सुपरपोजिशन बनाया था, ये उसका थर्ड ब्रांच है। तो हमने पहले देखा था कि अगर दो वेव्स दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच में डिफरेंस हो सकता है कि उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, उनका फेज में डिफरेंस हो सकता है। तो उनका सुपरपोजिशन करने के लिए यू हैव योर स्टैंडर्ड A1² + A2² + 2A1 A2। अच्छा, ऑल्सो वन अदर काइंड ऑफ थिंग। तो बीट्स और पल्स सेम होता है? नहीं, बीट्स में भी एक्सप्लेन करता हूँ क्या चीज़ है।
एक और चीज भी मैं बता देता हूँ, वो ये है कि ये तुम ऐसे लिख लो, इंटेंसिटी इन सुपरपोजिशन। इस पे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुमको बुकलेट में, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। टेक्निकली ये वाला टॉपिक हम जनरली वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि साउंड में भी आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस। हमने इंटेंसिटी देखा था, इसका फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर वाज प्रेशर का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बाय 2 रो सी। ये बाय द वे याद रखना है तुम लोग। सो व्हाट यू आर सीइंग इज दैट द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअली फॉर ऑल वेव्स के लिए ट्रू है। आगे हम देखेंगे लाइट के लिए भी ये ट्रू है ये फैक्ट। अब ऑब्वियसली वो एम्पलीट्यूड किस चीज का है वो तो वेव पे डिपेंड करेगा। साउंड के केस में इट विल बी एन एम्पलीट्यूड ऑफ प्रेशर, so the intensity of the sound wave is pressure is proportional to the square of the pressure amplitude. Light के केस में light के केस में the wave is not a pressure wave, it is an electromagnetic wave, so over here will be the electric field का amplitude, so the intensity of light will be proportional to the electric field का amplitude. Whatever the property is which is the main property for the wave, उसका जो amplitude है उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल उस वेव का इंटेंसिटी होता है। तो अब साउंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो प्रेशर एम्पलीट्यूड है, बट एनीवे फॉर ऑल वेव्स इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि फॉर टू वेव्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन and superposed, चिन्मय किसका, इसका? Are you talking this? We have derived this. पहले हमने derive किया इसको। मैं भी ये कह रहा हूँ कि for two waves going in the same direction and when you superpose them, तो you saw that the resultant amplitude का square is a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of the phase difference between the two. But since the intensity of a wave is proportional to amplitude square, this can also be written as the resultant intensity is the intensity of the first wave plus intensity of the second wave plus 2 root of I1 I2 cos of delta phi. Do you all agree? Yes. Proportionality factor being the same, तो ये भी करेक्ट है। तो ये जो फॉर्मूला है ये यूजफुल होता है आगे वेव ऑप्टिक्स में, तो बहुत ही यूज करेंगे हम इसको। आई मीन नॉर्मल क्वेश्चन सब यही होंगे, सब इंटेंसिटी फाइंड करने वाले। बट साउंड में भी कभी प्रॉब्लम आ सकती है इसकी। दे माइट सिंपली से कि दो वेव्स हैं जिनको सुपरपोज किया है। अब मान लो वो ऐसा बोलेंगे कि लेट्स से समथिंग लाइक टू साउंड वेव्स, तुम लोग बताना मुझे इसका आंसर, ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I are superposed, obviously going the same direction. Find I max by I min, meaning to say कि उनके सुपरपोजिशन से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ सकती है पॉसिबली फेज उनका चेंज कर करके, और जो मिनिमम इंटेंसिटी आ सकती है उन दोनों का रेशियो क्या है। इट्स अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। क्या बोल रहे हो? Sir, can you show previous page 1 minute? हाँ, आइविन तुम्हारा आंसर है करेक्ट, अर्नव करेक्ट, पार्थ करेक्ट। हाँ चिन्मय करेक्ट है, स्नेक करेक्ट है, रिदम नहीं करेक्ट नहीं है, 5 नहीं आएगा, क्षितिज करेक्ट है, मिराज करेक्ट है। पारिन करेक्ट है। Question, please.
प्रणव करेक्ट है, ओम करेक्ट है। भव्या करेक्ट नहीं है। परिजात करेक्ट है। मिताली करेक्ट नहीं है, हर्षित करेक्ट नहीं है, एकांश करेक्ट है। चिन्मय करेक्ट, हर्षित करेक्ट, श्रेया करेक्ट, प्रांजलि गलत है। मिताली करेक्ट, शिरीन करेक्ट, विनायक गलत है। भव्या करेक्ट है। आर्यन करेक्ट है। ओके, तो मैं कर देता हूँ फिर। बेसिकली रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यूज कब मिलेंगी? जब cos डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगी। तो I मैक्स तब मिलेगा जब I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 बनेगा। इसकी वैल्यू +1 हो गई होगी, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और I मिन कब मिलेगा? जब I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 और इसकी वैल्यू -1 मिलेगी, which can also be written as root of I1 minus root of I2 का whole square. So therefore I max by I min का वैल्यू मिलेगा मेरे को root of I1 plus root of I2 का square by root of I1 minus root of I2 का square, which in this case is I plus 2I and I minus 2I, which is 9. ठीक है, बराबर। So रूट होगा, हाँ ठीक है। तो ये एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन होता है। इसके बहुत सारे उसमें आता है। बेसिक टाइप क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 1 टाइप क्वेश्चन कि व्हाट इज द मैक्सिमम टू वेव्स ऑफ दिस इन दिस इंटेंसिटी आर सुपरपोज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, बट दिस इज आल्सो बिकॉज आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर
This is basically amplitude 1 square plus amplitude 2 square plus 2 amplitude 1 amplitude 2. So this is also for waves going in the same direction. When waves are going in opposite direction, that produces standing waves, which we have already discussed for both string and pipes. The third kind of superposition that you can have, वो जो flow chart मैंने बनाया था, produces the phenomenon of beats. This is what happens as a result of the superposition of two waves of different frequencies. So this is the only case where we discuss the superposition of two waves of two different frequencies going in the same direction. याद मत करो ऐसे. I mean, you shouldn't be like कि अच्छा standing waves is like same, this going this way. It's not. It's quite simple. These ideas are quite simple. You just have to imagine the waves going this way and that way, and then you can see the superposition happening yourself. बीट्स के लिए बेसिकली क्या है कि दो वेव्स का सुपरपोजिशन करना है, लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है. तो इससे जो आउटकम प्रोड्यूस होता है वो ये होता है कि लेट्स से दैट दिस इज वन वेव which has a certain frequency, and then I'm going to superpose it to a different wave, maybe of a different amplitude, doesn't matter. But what is important is, let's say that wave has a slightly smaller, shorter frequency, a higher frequency or a smaller wavelength. तो क्या होगा कि यहाँ से अगर तुम फेज में भी रखोगे उसको, तो बाय द टाइम वो यहाँ पहुंचेगा वो फेज में आउट हो जाएगा. दिस विल नॉट एंड अप बीइंग इन द सेम प्लेस एज दिस, एंड देन बाय द टाइम वो अगला चक्कर मारेगा तो काफी और आउट ऑफ फेज हो गया होगा उससे. अभी मेरा ड्राइंग में हो सकता है नहीं लग रहा, ड्राइंग एक्चुअली ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया मैंने. ऐसा कुछ और फिर ऐसा कुछ, और फिर अब तुम देख रहे हो बिल्कुल ही आउट ऑफ फेज हो गया है. यहाँ पे देखो पीक और क्रेस्ट मैच हो गया, लेकिन ये पीरियोडिकली होगा. क्या होगा कि जब तुम पहली बार यहाँ आओगे तो ये थोड़ा सा इससे पीछे रह गया है, आगे जाओगे तो थोड़ा और पीछे रह गया होगा, अगला चक्कर मारोगे तो और पीछे रह गया होगा. तो पीछे रह के इतना पीछे रह जाएगा, इसका जहाँ पीक आता है वहाँ इसका कोई क्रेस्ट आ जाता होगा. फिर आगे चलोगे तो फिर से और मिसअलाइन, लेकिन अल्टीमेटली फिर अलाइन हो जाएगा. मतलब क्या होगा कि थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस में तुम्हें परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिलेगा, और थोड़ा आगे चलोगे तो परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिलेगा, और बीच में जो है कंस्ट्रक्टिव से लेकर डिस्ट्रक्टिव तक का वेरिएशन भी मिलेगा. क्योंकि जैसा सुपरपोजिशन यहाँ होने वाला है, अगर मैं इसका सुपरपोजिशन करूं, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज द सुपरपोजिशन, इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. यहाँ पे तो मैसिव प्रोड्यूस कर देगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि दोनों ही फेज में है. लेकिन आगे जाते जाते एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा, and by the time you get to that place you will basically have zero amplitude there, but then after that it will start to build up again, and this kind of thing will happen. Make sense? ठीक है. Yes, और ये periodically होगा. तो अब होता क्या है कि अगर हम साउंड के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कर रहे हैं, तो होता ये है कि क्योंकि साउंड में आई मीन किसी भी वेव की तुम बात कर लो, लेकिन साउंड के केस में अगर तुम बात कर रहे हो तो साउंड का जो इंटेंसिटी है, साउंड का जो एम्पलीट्यूड है, देखो what has really happened is that the amplitude itself is now a function. You have to understand one thing कि वेव तो है ही खुद एक फंक्शन, लेकिन जो हम स्टैंडर्ड वेव देखते हैं उसका एम्पलीट्यूड फंक्शनल नहीं है, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है. I mean, there are two things, right? The wave itself is a function, but its amplitude is not a function. Its amplitude is a constant, whatever, 3 sin whatever. तो 3 sin 3 ही रहने वाला है वो एम्पलीट्यूड. दूसरा वेव है 2 sin whatever, तो उसका 2 ही रहने वाला है. लेकिन जब वो बीट होता है, यानी जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, उनको सुपरपोज करते हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड खुद फंक्शनल हो जाता है. You have a large amplitude here, then the amplitude itself is small, and then you have zero amplitude here. This place where you are getting a zero is not like this place where you are getting a zero. This place is currently at mean position, but it does oscillate. It just happens to be passing the mean position right now. This is a place where the amplitude itself has dropped to zero. No oscillation is occurring there, right? So basically क्या हो जाता है with beats is that the amplitude
varies with x and t. I mean of course with x and t, but generally speaking हम एक ही x पे लोकेटेड होते हैं. अभी जब तुम सुनोगे, अगर मान लो दो सोर्स ऑफ साउंड कहीं से बज रहे हैं और दोनों का फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है, तो तुम एक जगह पे जब दोनों को रिसीव करोगे तो तुम्हें उनका सुपरपोजिशन सुनाई देगा. तो तुम्हारा तो x फिक्स्ड ही है, तो एक सेंस में x उतना रेलेवेंट नहीं है तुम्हारे लिए. लेकिन जब वो बीट्स वहां से पास होता रहेगा, तो जब ये वेव वहां से जाता रहेगा, तो कभी तुम ये वाला पार्ट सुन रहे होगे तो बहुत लाउड सुनेगा. व्हाई एम आई सेइंग लाउड? बिकॉज दिस इज साउंड, एंड साउंड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिसाइड्स द लाउडनेस ऑफ साउंड. वो लॉग वाला जो फॉर्मूला था. तो हमारा परसेप्शन बीट के लिए, साउंड का बीट के लिए, बीट तो लाइट में भी होता है, बीट किसी भी वेव्स के सुपरपोजिशन से होगा जिनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है. साउंड के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली स्पीकिंग, the way we detect that beats are occurring is that the loudness of the sound will seem to vary. Like you are standing in one place and these two waves are just passing by your location and they are superposed, and so what you are hearing is sometimes loud sound जब ये वाला पार्ट तुम्हारे कान के पास है, और फिर वेव आगे चलेगी तो ये वाला पार्ट आएगा तो तुम्हें एकदम क्वाइट हो जाएगा, फिर लाउड हो जाएगा, फिर क्वाइट हो जाएगा. You have to make a distinction between two different things here. The sound that you are actually hearing, the quality of the sound, कि उसका frequency क्या है, उसका pitch क्या है, sharp sound है कि bass sound है, वो तो इस ब्लैक कर्व से कंट्रोल होता है. What you are actually hearing is the black curve. The red curve is not something real. ये बस एक, इसको बोलते हैं envelope. ये मैंने ऊपर से बनाया है. It's not really a wave or anything. It's not the thing. ठीक है? This is the envelope of amplitude. This is just to highlight the fact that the amplitude is varying. तो जो तुम साउंड सुनोगे उसका जो फ्रीक्वेंसी वगैरह होगा वो तो इससे कंट्रोल होगा, ब्लैक कर्व से. लेकिन जो लाउडनेस है उसकी वो एम्पलीट्यूड से कंट्रोल होती है, और वो इंटरमिटेंटली फॉल करेगी फिर राइज करेगी. तुम बढ़ता और कम होता साउंड सुनोगे, उसको हम बीट्स कहते हैं. जब हमें साउंड ऑल्टरनेटिवली लाउड एंड क्वाइट सुनाई देता है. फॉर साउंड एम्पलीट्यूड controls intensity, which controls loudness. Therefore, loudness will be perceived as varying. ठीक है, समझा तुम लोग को? तो इसका जो है मैं तुमको if I could play it तो for फैट पे होगा, किस पे? PHET पे. उससे आप उसके करो. देखो एक मेरे फोन पे इसका ऐप होता था, फ्रीक्वेंसी जनरेटर, बट ऑब्वियसली फोन पे शायद अभी नहीं है, एंड आई कांट इवन. तो 20 से 20,000 हर्ट्ज जाता है वो वाला. हाँ, ऑनलाइन टोन जनरेटर, लेट अस सी. मगर इसमें जो है एक ही है. एनीवे, अच्छा ये है, आई डोंट नो इफ इज दिस साउंड ऑडिबल टू यू? यस सर. तुम लोग को सुन रहा है ये? अभी बंद हो गया. Yes, sir. हाँ हाँ, ओके ग्रेट, नाइस. तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू प्ले दिस फॉर यू. आई विल आल्सो शो यू व्हाट आई एम डूइंग हियर. व्हाट आर यू गाइस सीइंग? अच्छा नहीं, एक सेकंड, जूम आ गया. ब्राउज़र अभी दिख रहा है? Are you all able to see? Yes. Yes, sir. तो ये बोल रहा है कि 500 प्ले कर रहे हैं और राइट ईयर लेफ्ट ईयर जाने दो.
देखो पहले मैं 500 और 500 प्ले करता हूँ, ठीक है? तो I am not sure that this will actually do the job because it's probably for testing stereo this thing. Sir, वैसे एक app है which does this. Probably this will not do the job. But in any case, the point is that if you तुम लोग ट्राई करके देख लेना, कोई सा ऐप रहेगा, एक फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेटर करके रहता है, बेसिक सा ऐप है वो, तो वो तुम लोग देख सकते हो। पॉइंट ये है कि when you play two sounds of two different frequencies, then the loudness, अभी तो तुम्हें एक साउंड सुनाई दे रहा था, राइट? बट उसका जो लाउडनेस था वो एक कांस्टेंट लाउडनेस था। बट इफ यू प्ले टू साउंड्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो उसका लाउडनेस भी तुम्हें जैसा एम्बुलेंस का साउंड होता है वैसा वैसा करता हुआ सुनाई देगा। एंड द पॉइंट इज कि जितना वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैं एक दूसरे से डिफरेंट रखूंगा, यानी मैं एक मान लो 500 हर्ट्ज प्ले कर रहा हूँ और एक 502 हर्ट्ज प्ले कर रहा हूँ, तो तुम्हें एक सेकंड में 2 बार वो बढ़ता हुआ कम होता हुआ सुनाई देगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं 500 और 510 हर्ट्ज लूंगा, यानी 10 का डिफरेंस लूंगा, तो एक सेकंड में वो तुम्हें 10 बार टू करता हुआ सुनाई देगा। लेकिन अगर 500 501 लूंगा तो टू वैसा सुनाई देगा। सो एसेंशियली द मोर डिफरेंट द टू फ्रीक्वेंसीज आर, द मोर compressed this graph is, so the more times per second you hear the loud and the quiet thing happening. ठीक है, तुम लोग फॉलो कर रहे हो? यस सर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कि मान लो एक जो है 400 हर्ट्ज है और एक 500 हर्ट्ज है, तो उनके बीच में 100 हर्ट्ज का डिफरेंस है, यानी ये जो लाउड क्वाइट वाला साइकिल है, ये एक सेकंड में 100 बार हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा कान का जो रेजोल्यूशन है वो उतना नहीं है। मैं एक सेकंड में आई थिंक यू कैन हेयर 16 वेरिएशंस पर सेकंड मैक्स, उसके बाद कंटिन्यूअस लगने लगता है वो। तो अगर एक 400 और एक 500 है, तो उनका जो डिफरेंस है 100 हर्ट्ज at which this will go will be too fast for us to notice that the loudness is varying. So the best outcome हाँ पार्थ, यही होगा, वो हो सकता है। आई डोंट नो हाउ टू, नहीं यही तो मैं प्ले कर रहा था, यही मैं प्ले कर रहा था, I didn't actually hear it work. There doesn't seem to be any kind of a, but in any case तुम लोग देख लेना ट्राई करके। So point ये है कि for the best possible experience of this effect, these two need to be quite close. Like if this is 500 and this is 502, then you will hear the sound go loud and quiet exactly 2 times in a second, and that is easily detectable कि वो टू ऐसा करके सुनाई दे। फिर अगर ये 500 और ये 505 है, तो एक सेकंड में 5 बार वो लाउड क्वाइट होगा, तो टू करके सुनाई देगा। अगर ये 500 और ये 550 है, तो अब 50 बार जब वो वेरी करेगा तो नहीं मेक आउट कर पाएंगे कि वो एक्चुअली वेरी कर रहा है। देन इट विल आल्सो स्टार्ट साउंडिंग लाइक अ कांस्टेंट, राइट? तो तब भी उसको बीट्स ही कहते हैं, लेकिन हमारे परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट रियली वेरी इजीली डिटेक्टेबल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली मैं तुम्हें मैथ इसका करके बता देता हूँ क्विकली, कि अगर मान लो मेरा एक वेव जो है वो है लेट्स से a sin k1x माइनस ओमेगा 1t लेट्स से, और दूसरा वेव है a sin, मैं सेम एम्पलीट्यूड रख रहा हूँ इनका। अगर तुम सेम एम्पलीट्यूड नहीं रखोगे तो क्या फर्क आएगा? कुछ खास नहीं, ज्यादा नहीं। जहां जीरो हुआ है वहां एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। मतलब अगर a1 a2 बराबर है तो ऐसा बीट्स बनेगा, जब जीरो होता होगा तो पूरा जीरो हो जाता होगा। लेकिन अगर a1 a2 बराबर नहीं है तो ऐसा कुछ बीट्स बनेगा, मतलब उसका जो मिनिमा है उसका भी कुछ एम्पलीट्यूड बच जाएगा, क्योंकि a1 माइनस a2 वहां पे रह जाएगा। ये समझ गए तुम लोग? ठीक है, तो एम्पलीट्यूड सेम और डिफरेंट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट ओनली कंट्रोल्स, यू विल स्टिल हेयर वेरिएशन इन द लाउडनेस, बट दिस इज जस्ट मोर ड्रामेटिक। सो आई एम जस्ट सेइंग कि भाई दोनों एम्पलीट्यूड सेम रख लो, सो दैट व्हेन दे हैव अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यू विल हैव लाइक इट विल गो वेरी क्वाइट।
एंड द अदर थिंग इज k2x माइनस ओमेगा 2t. तो अभी तक जितना सुपरपोजिशन हमने देखा है, चाहे स्टैंडिंग वेव्स का था, चाहे वेव गोइंग इन द सेम डायरेक्शन था, इट वाज नेवर द केस दैट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 वर डिफरेंट, दे वर स्टिल द सेम ओमेगा. अभी तक हमने क्या क्या चेंजेस देखे थे कि या तो एक में +5 होता था, सो दे वर बोथ गोइंग द सेम वे एंड वर आउट ऑफ फेज, या दूसरा हमने देखा कि यहाँ प्लस की जगह माइनस होता था, एक की जगह एक में प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस होता था, सो इट वाज अ वेव गोइंग द अदर वे. But k and omega were same for both waves. I mean, since omega is the same, k will automatically be the same because c is the same. So this is the first and the only example of superposition where we are actually saying the two omegas are different, and naturally then the two k's are also different. इनको superpose करना है. But let me write them in a form which will be more useful to. या मैं कर लेता हूँ. Superposing, I get y1 plus y2, which gives me a common लेके sin a plus sin b है, तो 2 sin of a plus b by 2, which will give me k1 plus k2 by 2x minus omega 1 plus omega 2 by 2t, right? Cos a minus b, तो ये हो जाएगा k1 minus k2 by 2x और minus omega 1 minus omega by 2t. ये क्लियर है सबको? ये प्रोडक्ट है एक्चुअली यहाँ पर, ये वेव बनेगा, ये उसका, ये इस चीज का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, ये चीज, ये जो लिखा हुआ है. ठीक है, सो फार सो गुड. अब इसमें क्या होता है कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तुम देख रहे हो, एक तो साइन फंक्शन है और एक कोसाइन फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट है. जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है कि जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, 1 सेकंड चार्ज कर लेते हैं इसको. तो जब भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, तो उसका आउटकम ये होता है कि एक फंक्शन दूसरे का एनवेलोप बन जाता है. एनवेलोप का मतलब मैथ में ये होता है, देखो ऐसे समझो, देन आई विल एक्सप्लेन दिस एंड द रिजल्ट दैट, इसमें बस बेसिकली एक रिजल्ट याद रखना है पूरा बीट्स का थ्योरी में. लेकिन मैं पहले ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं यहाँ से क्या डिड्यूस कर रहा हूँ, कि अगर जैसे इफ यू कंसिडर साइन एक्स, राइट, y इक्वल्स टू साइन एक्स, obviously what that means is that I mean what is not stated here but is there is that it is 1 sin x. It's a product of two functions, one being a constant and sin x, or you could say 4 sin x. तो sin x तो है ही, लेकिन ये सामने जो मल्टीप्लाई तुमने किया हुआ है, ये उसका मॉड्यूलेटर है. मॉड्यूलेटर मतलब ये उसका सॉर्ट ऑफ एम्पलीट्यूड को कंट्रोल कर रहा है. अब इस केस में क्योंकि वो कांस्टेंट है, तुम क्या करते हो कि पहले तुम y इक्वल्स टू +4 पे एक लाइन बना देते हो और -4 पे एक लाइन बना देते हो और फिर बीच में साइन फंक्शन भर देते हो, तो ये हो गया 4 sin x. 3 sin x होगा तो +3 -3 का लाइन बना के उसके बीच में साइन फंक्शन घुसा दोगे. बट हाउ अबाउट y इक्वल्स टू x sin x, इसको कैसे बनाओगे? व्हाट डू यू डू? व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन फॉर दिस? सो जैसा वो बीट्स वाला था वैसा बन जाएगा. नहीं, इसी स्पिरिट में करो ना कि 4 तुमने कैसे किया? पहले तुमने 4 को सॉर्ट कर लिया डॉटेड लाइन से और फिर sin x को फिल कर दिया. तो x को मैं कैसे सॉर्ट करूंगा? y इक्वल्स टू x का डॉटेड लाइन बना दूंगा, -x का भी आई मीन, और फिर sin x को इसमें फिल कर दूंगा. तो ये हो गया x sin x का प्लॉट. यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर.
सिमिलरली अगर मान लो मेरा फंक्शन है e की पावर x sin x, तो क्या करूंगा, पहले मैं e की पावर x प्लॉट कर लूंगा, नीचे वाला तो मुझे ऐसे बनाना पड़ रहा है क्योंकि साइन ऊपर नीचे दोनों तरफ जाता है, तो वो हर वक्त बाउंडेड रहना चाहिए ex के अंदर, और फिर उसमें sin x फिल कर दूंगा। तो एक सेंस में क्या चीज, क्या हुआ, Nothing. वो तो स्केल तो हो ही जाएगा ना, उससे क्या है। Any 0 for 1 is नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड द पॉइंट। 3 power x 0 for 1. e raised to x is 1 and x equal to 0. अच्छा हाँ, ओके ओके, ठीक है, फेयर इनफ। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द थिंग दैट इज इन द फ्रंट यू कैन थिंक ऑफ एज द एनवेलोप। एनवेलोप से मतलब है द थिंग दैट कंप्लीटली एनकैप्सुलेट्स द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो इसमें एक पैराडॉक्सिकल सॉर्ट ऑफ, पैराडॉक्सिकल कह लो या जो भी कह लो, बात यह है कि वन कुड ऑल्सो से दैट इट इज एक्चुअली साइन एक्स दैट इज द एनकैप्सुलेटर ऑफ ई एक्स। देखो ड्राइंग तो इसका तुम चाहे साइन एक्स को मानो एनकैप्सुलेटर या एनवेलोप, और ई एक्स को मानो मेन फंक्शन, या जिसको भी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो इट डजंट मैटर कि ऑर्डर क्या है, उसमें बनेगा तो एक ही। यू कुड ऑल्सो लुक एट इट एंड से नहीं एक्चुअली तो एक्स का ग्राफ है लेकिन साइन एक्स उसको उसको मॉड्यूलेट कर रहा है, बनेगा अल्टीमेटली यही फंक्शन है। बट जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि जो ज्यादा हाईली वेरिंग फंक्शन होता है, जो ज्यादा रैपिडिटी से वेरी कर रहा होता है, उसको फंक्शन मानते हैं, और जो स्लो वेरिंग फंक्शन होता है, कांस्टेंट है या एक्स है, उसको हम एनवेलोप मानते हैं। उसका कारण ये है ऑब्वियसली कि ये डॉटेड लाइन तो मैंने अपने गाइड के लिए बनाई है, एक्चुअली उधर है नहीं। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं तो इट इज फार इजियर टू लुक एट दिस साइन फंक्शन विच इज वेरिंग सो फास्ट एंड इन इट्स नेगेटिव स्पेस, यानी जिधर ये नहीं है उसमें मेरे को एक्स खुद ही दिख जाएगा। लेकिन इसको ऐसे इंटरप्रेट करना कि एक्चुअली एक्स का प्लॉट बना हुआ है जिसमें साइन एक्स दिख रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. गौरव, एनवेलोप इज सिंपली, कॉन्टेक्स्ट से समझना, एनवेलोप इज सिंपली द फंक्शन विच इज बाउंडिंग द मेन फंक्शन। जैसे 4 sin x का एनवेलोप है, ये देखो, या x यहाँ पे sin x का एनवेलोप है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट में किसी को भी एनवेलोप बोला जा सकता है, बट जनरली जो फास्टर वेरिंग फंक्शन होता है, जैसे टू टेक अनदर एग्जांपल, if I want to plot the graph of sin x sin 100x, तुम कैसे इसको प्रेफरेबली बनाना पसंद करोगे? Would you rather make the envelope as sin 100x and then try to fill sin x in it? कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा? Envelope sin 100. एनवेलोप हम sin x को बनाएंगे, उसका कारण यह है कि sin x जो है ज्यादा वाइड है। हाँ ज्यादा वाइडली वेरिंग है। sin 100x इतना रैपिडली वेरिंग है कि उसके वो ज्यादा जगह को फिल कर देगा ना, तो उसके शेप में ही मेरे को sin x दिख जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा रैपिडली वेरिंग फंक्शन है वो बेसिकली स्टेंसिल का काम कर रहा है, एक तरीके से वो फिल अप कर दे रहा है पूरे चीज को, और उसके मॉड्यूलेशन में मेरे को दूसरा फंक्शन दिखाई देता है। मैं सोचूं कि नहीं sin 100x को मैं एनवेलोप मान लूं और फिर उसमें sin x बनाने की कोशिश करूं, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है। तो obviously either of them can be called the envelope, but usually the better way to look at it is to look at the high frequency function, the more rapidly varying function, as the main thing, and the slow varying function or the low frequency function as the envelope. तो अगर ये लॉजिक हम यहाँ लगाते हैं, जो हमारा बीट्स का फंक्शन आया है ये चीज, तो इसमें एक तो साइन फंक्शन है और एक कोसाइन फंक्शन है। कौन सा इनमें से लो फ्रीक्वेंसी फंक्शन है? कोसाइन। कोसाइन वाला लो फ्रीक्वेंसी फंक्शन है, क्योंकि इसका टाइम में फ्रीक्वेंसी जो है, यानी टाइम में जो इसका ओमेगा है एक सेंस में, वो 2 ओमेगा का डिफरेंस है, जबकि इसका 2 ओमेगा का सम है। तो ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, इसमें जो ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें जो स्लोअर वेरिंग चीज है जो तुम्हें इसके नेगेटिव स्पेस में दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट, ये कोसाइन है। डिड यू ऑल गेट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ठीक है। तो इसमें जो कोसाइन है वो मेरा एनवेलोप हो जाएगा, और मेरे को एक्चुअली फॉर द पर्पस ऑफ फिगरिंग आउट बीट्स, मेरे को एनवेलोप में ही इंटरेस्ट है, पूरे फंक्शन में उतना इंटरेस्ट नहीं है, एनवेलोप में ही इंटरेस्ट है। क्योंकि अब एनवेलोप को अगर तुम देखोगे तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर फिर से,
अब बीट्स पे आ जाओ वापस, कि ये तो वो साउंड है जो तुम सुन रहे हो, और ये जो है उसका एनवेलोप है। जो कोसाइन फंक्शन है वो रेड में बनाया है, और जो साइन वाला पार्ट है वो मैंने ब्लैक में बनाया है, इस टाइप से। तो एक्चुअल साउंड ब्लैक में है, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है वो रेड में है, और वो कोसाइन है। तो अब खुद सोचो कि अगर ये पूरा चीज 1 सेकंड है, तो इस 1 सेकंड में तुम्हें लाउडेस्ट साउंड कितनी बार सुनाई दे रही है? दो बार। 2 बार। सो द थिंग टू अंडरस्टैंड इज, इवन दो इस कॉस फंक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो रेड वाला फंक्शन है ये कॉस है, और टेक्निकली ये इसका 1 साइकिल है, लेकिन हम जो सुन रहे हैं वो ये रेड वाला चीज नहीं है, हम जो सुन रहे हैं वो ब्लैक वाला चीज है। तो एक्चुअली रेड वाला चीज का जब मैक्सिमा आता है तब भी हम एक्चुअली लाउड साउंड सुनते हैं, और जब उसका मैथमेटिकल मिनिमा आता है तो ऐसा नहीं कि वो साउंड कम हो जाता है। साउंड कम तो वहां होता है जहां पे उसका 0 आता है, लेकिन जब उसका मिनिमा भी आता है तो भी एक्चुअली जो मेन फंक्शन है उसका एम्पलीट्यूड लार्जेस्ट ही होता है। मतलब हमारे कोसाइन के 1 साइकिल में हमें 2 बार लाउडेस्ट साउंड सुनाई देता है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो देयरफॉर हमें जो लाउड साउंड सुनने का फ्रीक्वेंसी है, कि हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड डू यू हियर द लाउडेस्ट साउंड, इज एक्चुअली ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोसाइन फंक्शन। क्योंकि ये तो कोसाइन का एक ही साइकिल है, तो फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कोसाइन फंक्शन के लिए तो 1 हर्ट्ज ही कहा जाएगा, 1 सेकंड में 1 साइकिल। लेकिन हम अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं कि लाउडेस्ट साउंड सुनने का क्या फ्रीक्वेंसी है, हाउ फ्रीक्वेंटली और हाउ मेनी टाइम्स अ सेकंड डू यू हियर द लाउडेस्ट साउंड, तो इट इज ट्वाइस अ सेकंड। So essentially it is twice the frequency of the cosine function. Do you all understand this part? So therefore since the loudest sound is heard twice in one cycle of the envelope, which is the cosine, the beat frequency is twice the frequency of the cosine function. Beat frequency क्या है यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ, और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन केवल बीट फ्रीक्वेंसी पे ही आते हैं। यही मेन पॉइंट है इस पूरे टॉपिक का। बीट फ्रीक्वेंसी is defined as number of times per second the loudest sound is heard. अब वो अगर मैं वो ऐप प्ले करके तुमको दिखा पाता, सुना पाता, तो it would have been quite clear, but I guess mathematically you guys are understanding what the point is that कि कोसाइन का फ्रीक्वेंसी का डबल फ्रीक्वेंसी पे मुझे लाउडेस्ट साउंड सुनाई देता होगा। तो अब कोसाइन का फ्रीक्वेंसी क्या था? कोसाइन का फ्रीक्वेंसी था ω1 minus ω2/2, which can also be written as, if I want to write it as frequency, it is 2 pi f1 minus f2/2, क्योंकि ओमेगा 2 पाई होता है। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ दिस है, यानी कि ट्वाइस ऑफ दिस है। तो देयरफॉर जो बीट फ्रीक्वेंसी है दैट इज एक्चुअली f1 minus f2, और हम मॉड लगाते हैं क्योंकि एनी ऑफ देम कैन बी बिगर देन दी अदर। ये फॉर्मूला है इस टॉपिक का, द ओनली फॉर्मूला। सो एज एन एग्जांपल, if sound 1 is 500 hertz and sound 2 is 503 hertz, then loudest sound is heard 500 minus 503 का mod equals to 3 times per second, which is to say कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 हर्ट्ज है। सब कुछ समझ गया चीज? ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसका एक जो एप्लीकेशन है, या कॉपी करने हाँ कर लो। इसका जो एक एप्लीकेशन होता था, ओल्ड एप्लीकेशन फोन्स एंड टेक्नोलॉजी के पहले, वो ये था कि जब ये सब म्यूजिशियंस वगैरह, ऑर्केस्ट्रा वगैरह जब ट्यून कर रहे होते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट्स ट्यून कर रहे होते थे, सो दे वुड ऑल सिट डाउन
एंड हर्षित वो उसका ये ब्लैक वाला ग्राफ ही ग्राफ है एक्चुअली, ये ब्लैक वाला ग्राफ एक्चुअल पूरी चीज का ग्राफ है, ठीक है? तुम करके देख लो डेस्मोस में या वुल्फ्रैम पे, किसी में भी तुम एक साइन ऑफ अल्फा एक्स माइनस बीटा टी कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉस ऑफ अल्फा 2x माइनस बीटा 2t, और जिसमें दूसरा वाला जो है छोटा है उससे, तो फिर श्रेया 2 पाई की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर इधर भी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख रहा हूँ, हर्ट्स वाली फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, तो 2 पाई दोनों तरफ ही आएगा ना, इसको डेल्टा एफ लिखते हैं। ये भी तो मैं काउंट कर रहा हूँ हर्ट्स के सेंस में, तो 2 पाई हटा दे रहा हूँ उसमें से, ठीक है? तो जब ये लोग ट्यून व्यून कर रहे होते थे अपना, जैसे पूरा ऑर्केस्ट्रा बैठा, अब ये प्ले करने वाले हैं, तो अब सबको ट्यून करना है, राइट? ट्यून करने का मतलब है कि अगर मैं वायलिन प्ले करने वाला हूँ और तुम गिटार प्ले करने वाले हो, तो तुम्हारा जो गिटार का सी माइनर है, मान लो कोई सा एक पर्टिकुलर नोट या कॉर्ड या टोन या व्हाटएवर, तो मेरा जो सी माइनर है और तुम्हारा जो सी माइनर है वो सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बिकॉज देन व्हेन वी प्ले द सॉन्ग और पीस और व्हाटएवर, देन हमारा सामने जो शीट रहेगा उसमें लिखा रहेगा यहाँ पे सी माइनर बजाना है। तो अब अगर हमारा पहले से ट्यूनिंग नहीं है सी माइनर का करेक्ट वाला, दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो मैं भी अपना सी माइनर बजाऊंगा, तुम भी अपना सी माइनर बजाओगे, मगर वो खराब सुनाई देगा, दे विल नॉट बी द सेम फ्रीक्वेंसी, राइट? So the way they used to figure out whether two instruments are in tune or not is that they would, मान लो मैं गिटार पे सी माइनर बार बार करता रहूंगा और तुम वायलिन पे सी माइनर करते रहोगे, और यदि वो दोनों अभी सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, तो जो हमें कंबाइंड साउंड सुनाई दे रहा है उसमें ऐसा टाइप सुनाई देता हो। तो जब तक वो लाउडनेस का वेरिएशन सुनाई दे रहा है तब तक दोनों फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाया है, और फिर हम दोनों में से कोई एक जज करेगा कि यार मेरा वाला एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रिंग टाइट हो रखा है। तो अगर मान लो प्रॉपर सी माइनर बजता है 300 हर्ट्ज पे, तो तुम्हारा तो करेक्ट है, लेकिन मेरा जो है गिटार का स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो इफ़ यू रिमेंबर, टेंशन कंट्रोल स्पीड एंड स्पीड कंट्रोल्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच कंट्रोल्स विच एवर हार्मोनिक इट इज़। तो अगर मेरा स्ट्रिंग ज़्यादा टाइट किया हुआ है वो वाला, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी बज रही है वो मान लो 305 हर्ट्ज बज रही है, जिसको मैं अपना सी माइनर मान के बजा रहा हूँ। तो हमें जो है लाउडनेस ऑफ साउंड जब हम दोनों प्ले करेंगे अपना अपना सी माइनर, तो हमें वो 5 बार पर सेकेंड, तो फिर मैं जज करूंगा कि मेरा थोड़ा हाई हो रखा है, तो मैं उसका टाइटनेस कम करूंगा गिटार स्ट्रिंग का, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में, तो मेरे को फिर, तो हम दोनों फिर प्ले करेंगे तो अब टू सुनाई देगा, फिर और मैं कम कर दूंगा तो टू, ऐसे करके एजेंडा इज कि तब तक उसको सेट करते रहो जब बिल्कुल एक ही एम्पलीट्यूड का, जब दोनों प्ले करते हो तो एक ही एम्पलीट्यूड का साउंड सुनाई देता हो। यू शुड नॉट फाइंड अ वेरिएशन इन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। So this used to be a way. अब तो obviously app होता है phone पे. If you play any instrument, you know that there are tons of apps, and you just have to hit A minor and you play your guitar, and it will listen and tell you whether you are to the right or to the left of the correct frequency. So you can adjust till you get the correct thing, right? Questions जो इस पे आते हैं वो इसी principle पे based आते हैं. Like they will say things like कि गौरव जाने दे उसको, बाद में देख लेना, इतना important नहीं कि cos कैसे envelope है. Basically, the slow varying function is said to be the envelope, right? That's the only important thing. तो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, लाइक दे विल से समथिंग लाइक, लेट मी से, कि एक ट्यूनिंग फोक है और एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और दोनों को साथ में बजाया गया। ट्यूनिंग फोक जो है मान लो 250 हर्ट्ज पे, ये हमें पता है, स्ट्रिंग पता नहीं है। तो इनिशियली जब बजाया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दिया वो सुनाई दिया 4 हर्ट्ज। देन string was tightened और फिर प्ले किया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दिया वो सुनाई दिया 2 हर्ट्ज। क्या इस बेसिस पे तुम बता सकते हो कि स्ट्रिंग का पहले क्या फ्रीक्वेंसी था?
करेक्ट परिजात। जिनमें क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग था और एक ट्यूनिंग फोक है। ट्यूनिंग फोक 250 पे बजता है, स्ट्रिंग पता नहीं कौन सा फ्रीक्वेंसी पे बजता है। तो दोनों को प्ले किया गया तो हमें 4 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया। फिर स्ट्रिंग को टाइट कर दिया और फिर बजाया तो फिर दोनों को बजाने पे 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया। तो बताओ कि स्ट्रिंग का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना। मिताली करेक्ट आंसर है, प्रांजलि करेक्ट आंसर है, चिन्मय गलत है, A56, प्रणव गलत है। Can you please repeat the question? अनवय करेक्ट आंसर है, पिनाक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये है, there is a string and a fork and the fork is at 250 hertz always, string का पता नहीं, दोनों को बजाया तो 4 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा था। तो स्ट्रिंग को टाइट किया फिर बजाया फोक के साथ तो आपकी बार 2 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दिया। आर्या करेक्ट है। तो तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर बताना है कि स्ट्रिंग का पहले क्या फ्रीक्वेंसी था टाइट करने से पहले। चिन्मय करेक्ट है। क्षितिज करेक्ट है। हो गया बाकी लोग का।
246 करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली क्या है, पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि भाई 4 हर्ट्ज है बीट फ्रीक्वेंसी, यानी ट्यूनिंग फोक और स्ट्रिंग के बीच में 4 का डिफरेंस है, विच गिव्स अस 2 कैंडिडेट्स, ईदर द स्ट्रिंग इज एट 246 और इट इज एट 254। यू डोंट नो राइट, बिकॉज 4 पता थोड़ी है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, 4 तो डिफरेंस है। तो अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि स्ट्रिंग को टाइट किया। अब अगर स्ट्रिंग को टाइट करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। इट शुड गो टू अ हायर फ्रीक्वेंसी। अगर वो 254 पे ऑलरेडी होता और तुम उसको और टॉट करते तो 254 से ऊपर चला जाता। ट्यूनिंग फोक 250 पे है तो उनका डिफरेंस तो 4 से बढ़ जाता, लेकिन यहाँ कम हो गया है। तो क्लियरली द स्ट्रिंग वाज एट 4 lower than 250 instead of being 4 above 250 it was 4 below 250, so that's 246। सबको समझ में आ गया ये चीज? Yes, sir. अब स्ट्रिंग कौन सा फ्रीक्वेंसी पे आ गया है वो बता सकते हो? $248 या 252 भी हो सकता है। हु नोस कितना टाइट किया है? आर यू फॉलोइंग? Yes, sir. हो सकता है इतना ही टाइट किया कि वो 248 पे आया तो फोक से 2 नीचे रहा तो 2 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है। हो सकता है इतना टाइट किया उसको कि वो ट्यूनिंग फोक से भी 2 ऊपर चला गया 252, तो भी तुम्हें 2 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो ऊपर आपने 254 को एलिमिनेट किया। क्योंकि अगर स्ट्रिंग ऑलरेडी 254 पे होता और तुम उसको और टाइट करते तो उसका फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाता। राइट, तो डिफरेंस और बढ़ जाता। तो डिफरेंस और बढ़ जाता। इसी में एक वेरिएशन ये होती है, ये सब ऐसे ट्रिवियल चीजें जो अलग अलग से बतानी पड़ती हैं। इसी टाइप के प्रॉब्लम में कभी वो बोलेंगे कि स्ट्रिंग तो पता है फिक्स है, ट्यूनिंग फोक को वेरी कराएंगे, तो ट्यूनिंग फोक को वो बोल रहे हैं कि ट्यूनिंग फोक को लोड किया है या वैक्स किया है। ठीक है, इसका जो मतलब होता है बेसिकली, या लोड किया है, वैक्स मतलब वैक्स लगा दिया उस पर, तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा भारी हो जाएगा, तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जानी चाहिए? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, क्योंकि हर ऑसिलेटरी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इस टाइप से डिपेंडेंट करती है, तो उसकी स्टिफनेस और उसकी इनर्शिया पे। तो अगर ट्यूनिंग फोक को वैक्स लगा दिया है या ट्यूनिंग फोक्स को लोड कर दिया है, तो ये सब फ्रेज तुम देखोगे तो कंफ्यूज मत होना। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक, and the only way to do it is to put some material on it so as to make it heavier. They might also say tuning fork को स्क्रैप कर दिया, सैंड कर दिया, सैंडिंग कर दिया उसका, तो उससे तुम मटेरियल हटा रहे हो उस पे से, तो उससे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। राइट? तो ये सब बेसिकली अलग अलग तरीके हैं कहने के, कि प्रॉब्लम का टेम्पलेट यही है कि दो चीजें हैं जिनका फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, और जितना डिफरेंस है उतना हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी तुम्हें सुनाई दे रहा है। तो अब कुछ ना कुछ करके उसको कम किया जा रहा है, पास में लाया जा रहा है। ठीक है, तो बीट्स में बेसिकली बस इतना ही है। दिस इज द ओनली रेलेवेंट bit of mathematics in this topic. You should know what beat frequency is. It is the difference of the two frequencies which are superposing to give you the beats. ठीक है, all right. अच्छा, अब एक टाइप की चीज इसमें जो है, नहीं ठीक है, यही है बस। All right. ठीक है, then so we are done with sound also. This is the end of this chapter. तो अब तुम पूरा जो तुम्हारा वेव्स का बुकलेट है, जिसमें एक्चुअली वेव ऑन अ स्ट्रिंग और साउंड है, राइट, वो तुम लोग पूरा कर सकते हो। ऑल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली ओपन फॉर यू, सो प्लीज डू इट। एंड HC वर्मा में दोनों अलग अलग करके दिया है। चैप्टर 15 है वेव ऑन अ स्ट्रिंग या वेव मोशन या कुछ नाम है उसका, और चैप्टर 16 है साउंड वेव्स। सो वो दोनों चैप्टर भी तुम लोग पूरा कर सकते हो, और वेव्स का जो पूरा बुकलेट है वो भी तुम लोग पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो कर लो, फिर हम इसका डाउट डिस्कशन रखेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट पेज जो क्वेश्चन है ना वो मतलब समझा नहीं, मतलब पूछना है। हाँ, कौन सा वाला? सर नेक्स्ट पेज पे हाँ जो लास्ट क्वेश्चन ये। हाँ नहीं उसमें बाद में क्या किया वो नहीं समझा। ये वाला पार्ट, हाँ उसके बाद ये वाला पार्ट समझे कि 246 कैसे हमको समझ में आया? हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं ये पूछ रहा था कि क्वेश्चन में तो पूछा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या था स्ट्रिंग का टाइट करने से पहले, मैंने एडिशनली पूछा कि टाइट करने के बाद उसका नया फ्रीक्वेंसी क्या हो गया है। तो ओरिजिनल 246 था जब वो 250 से 4 के डिफरेंस पे था, फिर तुमने उसको टाइट किया, इतना टाइट कर दिया कि अब उसका 250 से 2 का डिफरेंस है, लेकिन वो तो 248 होके भी हो सकता है, 252 होके भी हो सकता है। मतलब दो पॉसिबल आंसर है कि स्ट्रिंग को तुमने 246 से टाइट करके 248
ट्यूनिंग फोक जो है 250 पे बैठा है, और तुम्हारा जो है पहले 246 पे था स्ट्रिंग, तुमने उसको टॉट करके अगर 248 पे लाया तो भी 2 का डिफरेंस आ जाएगा, और इतना टॉट कर दिया कि 252 पे पहुंचा दिया तो भी 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो केवल 2 का डिफरेंस है, उससे नहीं बता सकते हैं कि वो बाद में 248 पे आ गया, 252 पे आ गया। ईदर कुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग। समझा भी? नहीं? यस नो? सर वन सेकंड हाँ सर, एक मिनट। हाँ हाँ। सर वो जो डेल्टा एफ दिया है वो बीट फ्रीक्वेंसी है ना? हाँ, वो दोनों का डिफरेंस होता है का मॉड। अच्छा, तो पहले 246 और 254 में से कोई भी हो सकता है? बाद नहीं, में कोई भी नहीं, 246 ही हो सकता है। पहले वाला तो 246 ही हो सकता है, क्योंकि अगर पहले वाला 254 है इसका और ये 250 पे है, मतलब स्ट्रिंग को टाइटन करेंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? C/2L। हाँ स्ट्रिंग में वेव का C क्या होता है? √T/μ। हाँ, तो अगर T बढ़ाओगे तो C बढ़ेगा, C बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ओके समझा। राइट? ओके सर। ठीक है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ऑलराइट, तो खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जो है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर में, जो कि फ्राइडे को है, हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑलराइट। Thank you, sir. स्ट्रिंग पहले से वाइब्रेशन में था इसमें? स्ट्रिंग पहले से कुछ नहीं है, वो प्ले करते हैं उसको तो एक साउंड बजता है उसमें, ओके ओके। गिटार स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, चलो फिर, ऑलराइट। थैंक यू सर।